and welcome back to my channel. I am Dr. Surya Shaheen and today I will deal the second story of Heart Lamb by Banu Muskan. I have already dealt the first story and today I will deal the second story. And this story deals with the gender hierarchy and the rights of women, especially in Muslim family. This story is about the situation created on property sharing when the sister of a brother asks for her sharing in the property. The story revolves around Usman Sahab, whose married sister Jamila has arrived to ask for her property sharing. Okay, now I deal the topic. So I am dealing the story, the text here in English and Hindi. As we know, the title is Fire Lamp, and this is the second short story of the Heart Lamp. So just as the azan for morning prayers began sounding from the mosque, Mutwalli Usman Sahib sat up on his bed. Noticing that his wife Arifa was not beside him, he stepped out in the living room and saw that she and their son Ansar were fast asleep on the rug. Actually यहाँ पर जो डिस्क्रिप्शन है वह मुतवल्ली साहब के बारे में है, कैसे वह सुबह की अजान होती है उस टाइम वह सोकर उठते हैं और यहाँ पर वह क्या कर रहे हैं, वह मस्क जाने के बारे में सोच रहे हैं। वह प्रेयर क्योंकि सुबह की अजान हुई है, वह नमाज पढ़ना है, लेकिन वह बेड पर से सोकर उठे हैं। अभी देख रहे हैं बेड पर कि आरिफा वाज नॉट बिसाइड हिम, मतलब आरिफा कौन थी? एज वी नो आरिफा वाज द वाइफ ऑफ उस्मान, उस्मान की वाइफ थी, राइट। तो यहाँ पर ये सब इनका डिस्क्रिप्शन चल रहा है कि कैसे वह अब नमाज पढ़ने के लिए जा रहे हैं। He stepped out into the living room and saw that he and their son Ansar were fast asleep on the rug. अब आगे बढ़ने पर क्या होता है कि थोड़ा after one description he suddenly remembered however that his youngest sister Jamila and her husband were sleeping in the next room and became agitated. अब इसी टाइम जो मुतवल्ली साहब है उनको याद आ जाती है कैसे उनकी बहन जो है यंगेस्ट सिस्टर जमीला और उसके हस्बैंड अभी तक सोए हुए हैं, तो इस बात से वह गुस्सा हो जाते हैं, राइट। नाउ here the mosque was a furlong from their house. He walked swiftly, fiercely, and the wheel of the dawn missed with his long strides along his body moved towards the masjid. His mind kept moving back. अब यहाँ पर क्या है, एक्चुअली Usman said to his wife, his beloved wife, the statements that his most beloved youngest sister, the sister he had tenderly educated till she finished secondary school, the sister to whom he had given 18 silk sari and given jewelry, a motorbike for husband and her wedding by 5 years ago, that sister had come and asked for the share. अब यहाँ पर जो बात हो रही है, शेयर की बात हो रही है कि कैसे उसकी बहन जो मुतवल्ली साहब है, उसकी बहन जो है वह आ चुकी है शेयर के लिए, राइट। अब वो याद कर रहे हैं कैसे कितना सारा उसे मतलब मैरिज में वेडिंग के टाइम में सामान दिया था, उसे पढ़ाया था, सेकेंडरी स्कूल तक मोटर बाइक दिया था, एंड नाउ शी हैज कम फॉर हर शेयर। फैमिली प्रॉपर्टी की बात हो रही है, यहाँ पर फैमिली प्रॉपर्टी के लिए आ चुकी है उनकी यंगेस्ट सिस्टर, राइट। तो यहाँ पर क्या है, जमीला के बारे में बात हो रही है। अब यहाँ पर क्या है कि शरीयत की बात हो रही है। अब उसकी बहन जो है, मुतवल्ली साहब की बहन जो है, वो कहती है, आई एम नॉट आस्किंग यू फॉर अ शेयर इन प्रॉपर्टी, यू हैव वर्कड हार्ड एंड अर्न योरसेल्फ, व्हाट वाज द प्रॉपर्टी ही हैड अर्न्ड wasn't him only managing the property his father had accumulated। यानी कि एक्चुअली जो मुतवल्ली साहब है, एक्चुअली उनको थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है कि उनकी सिस्टर प्रॉपर्टी मांगने के लिए आ गई है। 1/6 ऑफ द फादर्स प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू मी, वह कहती है उनकी सिस्टर की 1/6 ऑफ फादर्स प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू मी, यानी कि जो मतलब 6 भाई बहनों में जो प्रॉपर्टी उनकी हिस्सा बनता है उसमें से एक शेयर उनकी सिस्टर का है जो कि मांगने के लिए यहाँ पे आई है, राइट। Now you take some decisions for problems in the mohalla. You should have called me and said, here, take your share. Forget my situation. Take Sakina Aka's case. She had neither a husband nor
children old enough to work. How is she to arrange marriage for her two grown up daughters, right? तो यहाँ पर अब वह सकीना का ऐसे एग्जाम्पल दे रही है कि कैसे वह हर कुछ मैनेज कर रही है। अब एक्चुअली जमीला जो है, जमीला सेड अबाउट हर सिस्टर सकीना, राइट? ये सब जो स्टेटमेंट है वह कौन बोल रहा है? एक्चुअली दीज स्टेटमेंट्स आर टोल्ड बाय जमीला। जमीला बोलती है सकीना के बारे में, राइट? अब सकीना कौन है? सकीना एक्चुअली जो है वह उसकी सिस्टर होती है, राइट? और उसी के बारे में जमीला सेड अबाउट हर सिस्टर सकीना की देखो कैसे मतलब उसकी जो सिस्टर है वह कैसे अपने बच्चों की परवरिश कर रही है, उसे भी मतलब शेयर की जरूरत है। The Mutwallis have kept staring at the floor. How surprising it was that Jamila was talking so much. अब उसे बुरा लगा मतवली साहब को भी कि कैसे उनकी सिस्टर जो है यंगेस्ट सिस्टर होकर इस तरह की बातें कर रही है, जो कि वो एक्सपेक्ट कभी नहीं किया था। जमीला continued to croak like a frog. अन्ना, you got me married into a good family. I am not saying you didn't, but please think it has been 10 years since Appa died. If you had given me my share then, by now I would have earned 10 times the money you spent on the body. I am not asking for all that money. मतलब यहाँ पर जमीला फिर से मतलब बोल रही है कि कैसे मतलब उसकी शादी कर दी गई और वही कह रही है कि इट इज 10 साल हो चुकी है उसकी शादी की, कह रही कि जितना पैसा शादी पे खर्च किया गया अगर उतना पैसा उसे उसे दे दिया गया होता तो शायद उसे आज पैसे की जरूरत नहीं होती। वो इस तरह से बात कर रही है, राइट? अब आगे क्या है कि मुतवल्ली साहब डिडंट से अ वर्ड, ही ग्रंटेड एंड स्टूड अप एंड स्टेयर्ड एट जमीला। वह जमीला पे वह गुस्सा होकर देखता है उसका भाई। सीइंग हर एल्डर ब्रदर दैट वे शी वाज लिटिल स्केयर्ड। अब इसकी जो बहन है जमीला वह मतलब डर जाती है अपने भाई को गुस्से में होते देख करके, राइट? He sat like an idol, not even bothering to remove his cap. Bits of sweat formed on his forehead. यानी कि मुतवल्ली साहब के बारे में ये सब बोला जा रहा है क्योंकि वो गुस्से में है, राइट? All these details of the incident passed through his mind. Since it was winter, there was water boiling in the bathroom behind the mosque. Now, but he didn't want to go home just yet. But the time he walked very slowly and reached the circle in the town, the doors of Medina Hotel had opened. He walked in and drank a cup of tea, but didn't feel relieved. अब थोड़ी सी इनकी मुतवल्ली साहब को बेचैनी हो रही थी क्योंकि अब उनको प्रॉपर्टी शेयर की घर में बातें चल रही थी और उनके सिस्टर जो है जमीला प्रॉपर्टी शेयर उसे चाहिए ही चाहिए था, तो ही वॉज कम्प्लीटली डिस्टर्ब है। तो actually what happens there, the Mutawalli Sahab saw this from a few yards away and was about to leave when another crow came out of nowhere, cawing ka ka. The sound began to echo. Crows began to gather as if magic. तो मतलब जैसे कि आपको पता है इंडियन कल्चर में जैसे क्रो का जैसे काव काव करना को एक तरह से उसे इनऑस्पेशियस समझा जाता है, उसी तरह से मतलब डिसअपॉइंटेड सिचुएशन में इस तरह का साउंड को जब लोग रहते हैं तो उनके कानों में आवाज आती है, तो इस तरह उन्हें लग रहा है कि वो करो की काव काव की आवाज सुन रहे हैं। By the time he returned home, still absent-minded, and got to his bedroom, the Mutwalli Sahab was feeling sleepy. Arifa was occupied with household chores, busy with looking after her sick child while getting breakfast and lunch, school bags, shoes, socks ready for her other children, and so preparing special dishes for Jamila and her husband. तो यहाँ पर जो है उनकी वाइफ जो है अरीफा वो एक्चुअली अपने घर के कामों में बिजी होती है। मुतवल्ली साहब की वाइफ है अरीफा, वो कामों में बिजी होती है, बच्चों की लंच के लिए, स्कूल बैग के लिए, सॉक्स शूज सब रेडी कर रही है अपने बच्चों के लिए, और उसमें से क्या है स्पेशल डिशेज भी बनाना पड़ रहा है। किसके लिए? उसकी जो है सिस्टर इन लॉ जो आई हुई है, यानी मुतवल्ली साहब की जो सिस्टर आई हुई है जमीला, और उसके हस्बैंड के लिए। अब क्या है आगे क्या हो रहा है यहाँ पे कि Arifa was rolling chapatis extremely agitated, right? Oh Parvardigar, give him some good sense, she cried in her heart. यानी कि वह
अपने हस्बैंड के बारे में वह बोलती है कि she give him some good sense. She cried in her heart. She had just put a wet cloth on Ansar's forehead, although she was mechanically rolling the जो अंसार होता है एक्चुअली उसका अरीफा का सन होता है, बेटा होता है, उसकी तबीयत थोड़ी खराब होती है, तो इट वाज टॉकिंग अबाउट दैट. देन व्हाट हैपेंस नाउ. Cracked heels, colored lead skin, Hawaii chappals repaired using pins. Arifa recognized the woman's condition in a glass and felt embarrassed for her. Nor did the woman come in, but remained in veranda along with the many men who had come to see the Matwalli Sahab. अब एक मतलब आरिफा देखती है कि कोई औरत आई है उसके बरामदे में और वो खड़ी है वहां पे, तो वो एंड दैट वुमेन एंड शी केम विथ मेनी मेन, वो औरत बहुत सारे मेन के साथ आई है एंड शी वांटेड टू मीट मुतवल्ली साहब. अब मुतवल्ली साहब के लिए मिलने आई है वो. एंड नाउ शी स्टूड बिहाइंड द कर्टेन सेपरेटिंग द लिविंग रूम. सकीना अक्का आई बेग यू वेयर आर यू स्टैंडिंग, यानी कि ये जो औरत है वह सकीना अक्का थी जिसे कि आरिफा बोल रही है कमिंग अंदर आने के लिए और बैठने के लिए. अब सकीना कौन थी आपको पता है, ये नेक्स्ट सिस्टर ही थी मुतवल्ली साहब की, राइट. इट इज ओके मम्मी यू गो टू वर्क, इफ मम्मा कम्स वी विल टेक टू हिम एंड लीव. सकीना वाज हर एल्डेस्ट सिस्टर इन लॉ, यानी जो सकीना थी वह एल्डेस्ट सिस्टर इन लॉ थी आरिफा की, राइट. तो आफ्टर शी बिकेम अ विडो, या विडो हो चुकी है सकीना, एंड शी टूक अ टेलरिंग टू रेज हर 3 चिल्ड्रन को परवरिश कर रही थी किसी तरह से वह टेलर का काम करके, एंड हर फैमिली. नाउ she didn't desire even a drop of water from her maternal house. She would come once in a while during festivals. वह कभी कभी आती थी सकीना. That day she was standing in line with others like a stranger. लेकिन आज वह इस तरह से खड़ी है stranger की तरह से. तो अरीफा को कुछ अजीब सा लगा, तो उसे लगा कि अब ये भी अपना for a share in property like जमीला, अब ये भी सिस्टर इन लॉ आ चुकी है प्रॉपर्टी शेयर के लिए. अब her attempts to somehow get Sakina to at least sit in the living room. अब इस तरह से आगे बातें होती रहती है. So Sakina joined her palms together and in a strange tone put forward her request. अब बोलती है क्या है, भाई साहब प्लीज हेल्प अ destitute widow like me. Allah will grant you and your family happiness and prosperity. यानी कि अब सकीना बोलती है अपने भाई से मुतवल्ली साहब से कि मतलब भीख की तरह वह मांग रही है कि मुझे भी कुछ हेल्प कर दो, मैं तो विडो हूँ, मुझे भी कुछ दे दो. माई सन इज स्टडिंग इन फर्स्ट ईयर ऑफ BA. He has an interview at an engineering college. इस तरह से वह अब वो भी मांग रही है, जमीला को भी शेयर चाहिए और इसे भी चाहिए, सकीना को भी चाहिए, दोनों सिस्टर को चाहिए. क्रो बिगन टू स्क्रीच इन मुतवल्ली साहब माइंड. अब यहाँ पर फिर क्रो की बात आ रही है, यानी कि मुतवल्ली साहब मतलब परेशान है, घबराए, उन्हें बार बार क्रो की आवाज अपने कानों में जा रही है, वो काफी परेशान है. मुतवल्ली साहब आस्क्ड हर नेम ऑफ द नेम ऑफ द हॉस्पिटल, द डॉक्टर एंड अदर डिटेल्स. मतलब यहाँ पर एक इंसान मुतवल्ली साहब से उन्हें कुछ मांगने के लिए आया, हेल्प करने के लिए, क्योंकि मुतवल्ली साहब के पास बहुत सारे लोग आते रहते हैं अकॉर्डिंग टू द स्टोरी. तो मुतवल्ली साहब एक्चुअली he asked about the name of the hospital, doctor and details. Expressing her gratitude, she left blessing him from the bottom of the heart. उन्होंने कुछ दिया और उसने उन्हें काफी ब्लेसिंग दिया, राइट. नाउ दाऊद वॉज द राइट हैंड मैन. दाऊद जो था वो राइट हैंड मैन था मुतवल्ली साहब का. And in this way that their thoughts went in the same direction was the proof of their friendship. He was expert in reducing the मुतवल्ली साहब से moods, यानी मुतवल्ली साहब का मूड जब अप एंड डाउन होता था तो वो दाऊद जो है उसे हंसाने का और उसके फेस को वो रीड करता था. Now the question is here that time, because at that time Mutawalli Sahab situation was not good because his 2 sisters visited his house to ask for the property sharing, right. Now the Mutawalli Sahab was not only the president of the masjid committee but was also involved in politics. ये जो मुतवल्ली साहब थे सिर्फ ये मस्जिद की कमेटी ही नहीं थे बल्कि ये पॉलिटिक्स में भी इन्वॉल्व थे. ओके, वहां के मोहल्ला के पॉलिटिक्स में इनका नाम काफी आता था. सो अ लॉट ऑफ पीपल वेयर स्टिल वेटिंग फॉर देयर टर्न टू टॉक टू हिम. बहुत सारे लोग उनके पास आते रहते थे बात करने के लिए.
बट ही हैड अर्जेंट बिजनेस विथ दाऊद, लेकिन उनका दाऊद के साथ कुछ काम था. द एजेड साहब जान स्टम्बल्ड फॉर व्हाट ट्राइंग टू सी थ्रू हिज मिस्ट्री कैटरेट्स एंड व्हाइट एवो. साहब साहब, माय यंगेस्ट डॉटर इज गेटिंग मैरिड नेक्स्ट वीक. अब ये साहब, एक इंसान अगर वो बोलता है मतवली साहब को कि मेरी डॉटर की शादी होने वाली है, मुझे भी कुछ अब हेल्प कर दो. यू मस्ट शो सम जेनरसिटी, कुछ तो मदद कीजिए. माई बाप, यू यू आर लाइक माई फादर. इस तरह से वह और मुतवली साहब उसको कुछ वैसे हेल्प करते हैं. ही सेड अबाउट टू फॉल द मुतवली साहब फीट, वह मुतवली साहब के पैरों में गिरने लगा. नाउ फाइनली यू आर फॉलिंग इन ए लाइन. A shaitan sniggered in a corner of Mutawalli's mind. He pictured a large open site, a crumbling. मतलब यहाँ पर जो डिस्क्रिप्शन है वह यहाँ पर काफी लोग उनसे मदद के लिए लाइन में लगे हुए खड़े हैं, काफी गपशप हो रही है, बातें हो रही हैं. नाउ द क्वेश्चन इज here what was happened? Everything was totally destroyed. अब यहाँ पर ना निसार की एक्चुअली डेथ की बात आ रही है, यानी कि एक बार क्या हुआ, एक इंसान को जिसका नाम निसार था उसको मुतवली साहब ने बहुत पीटा था. He didn't have patience to untangle the web of relationship and his name is निसार. एक पेंटर था, निसार था, उसको बहुत मारा मुतवली साहब कि वह उसकी डेथ हो गई. He said he would paint the masjid and ran away after getting 200 rupees. 200 रुपया उसने ले लिया, उसने पैसा लिया था और क्या किया था, भाग गया था ड्यूरिंग द लास्ट रमजान, और उसने पेंट नहीं किया था मस्जिद को. इसलिए मुतवली साहब रिमेम्बर्ड स्टोरी को कि कैसे उसको पेंटर को वह मारा था. ही रिमेम्बर्ड गेटिंग द पेंटर टाइड टू अ ट्री, कैसे उसे मारा था, उसे पेड़ में बांध करके फॉर ईटिंग मस्जिद का पैसा लिया था. ही फेल इनटू अ पॉन्ड एंड डाइड, को निसार के बारे में बताया जा रहा है. हालांकि इसमें अकॉर्डिंग टू द स्टोरी यह एक इल्यूजन है. इट इज टॉक्ड अब ऑन, यहाँ पर आपको ट्रू लग रहा हो बट इट इज ऑन द बेसिस ऑफ इल्यूजन, राइट. So what happened? What was happened? Everything was totally destroyed. अब पुलिस ने उसके लाश को, निसार के लाश को हिंदू सेमेटरी में उसको दफन कर दिया था, जो भी होता है उसके हिसाब से. तो आगे चल के क्या है कि जो मुतवली साहब है वह चाहते हैं कि निसार के जो डेड बॉडी है उसको हिंदू सेमेटरी से निकाल करके उसको कब्रिस्तान में दफनाया जाए, ताकि कुछ मतलब वो अच्छा काम कर सके. दाऊद सेड अ लिटिल सस्पिशियस. यहाँ पर क्या है, everyone there was devastated. What was terrible time when some people die, there are thousands ready to soldier the body to graveyard, and at this poor fellow doesn't even get a shroud and a decent burial. यानी कैसे निसार की डेथ हो गई, कोई से बरियल के लिए भी नहीं गया. अब क्या है, now गिविंग हिम अ प्रॉपर बरियल सीम्ड लाइक द होलीएस्ट ड्यूटीज फॉर द सेम पीपल. अब ये लोग क्या कर रहे हैं, मुतवली साहब कुछ लोगों को लेकर के उसके जो डेड बॉडी है उसको निकाल करके एक्सह्यूम करके और उसे कहीं और उसे मतलब कब्रिस्तान में उसे दफन करना चाह रहे हैं. नाउ Daud didn't miss the chance to add his two bites either. Mutwalli Sahab, somehow you are there to give us direction. That is why we still remain human. One day they get to court for something related to Quran, that woman Shah Banu's case. They made it a big deal and insulted us repeatedly. Here they are talking about the situation. Daud began to see this as a grave problem. यानी कि कब्र की प्रॉब्लम की यहाँ पे बातें हो रही. Everyone was restless, even the Mutawalli. He plucked at his beard, shoved a finger into his nose. The issue was so complex that even Arifa came and stood behind curtain instead of getting her children ready for school. Having woke up at Little Lake, Jamila spoke to Arifa in whispers and heard that what happened and joined her sister in behind the curtain. अब यहाँ पर से उसकी वाइफ देख रही है क्या क्या सिचुएशन उसके घर में हो रहा है, मतलब प्रॉपर्टी की बंटवारा की बात हो रही है. Jamila's husbands also got to know the news and came to stand outside with others. Everyone was annexed, agitated. Enthusiasm grew for fighting the holy war to save Islam. मतलब यहाँ पर जो है निसार के एक्चुअली बॉडी को जो हिंदू सेमेटरी में बड़ी किया गया था वहां से एक्सह्यूम करके एक्चुअली टू रिमेन्स एक्सह्यूम्स फ्रॉम देयर एंड बरीड हेयर, यानी कब्रिस्तान में डालना था और इनके हिसाब से मतलब कुछ अच्छा काम इन्हें करना था. इस तरह से ये बातें कर रहे हैं.
or everything happened as expected before he came to out his reverie. Jamila's husband had taken out 250 rupees from his pocket and placed it on the table in front of the मुतवल्ली. उसका हस्बैंड जमीला के हस्बैंड ने अपना पैसा 250 पैसा अपनी पॉकेट से निकाल के मुतवल्ली साहब के सामने में रख दिया. भैया, इफ यू यूज दिस फॉर योर वर्क आई विल ऑल्सो रीप द बेनिफिट्स ऑफ गुड डीड. यानी कि अब देखा कि उसके जो मुतवल्ली साहब जो है अब अच्छा काम मतलब कर रहे हैं, तो मैं भी इसमें कुछ पैसा कंट्रीब्यूट कर देता हूँ. तो अब जो शेयर प्रॉपर्टी शेयर जो मांगने आया था वो खुद ही अब पैसा मुतवल्ली साहब को दे रहा है कि हमारा भी कुछ अच्छा काम हो जाए इस पैसे से, राइट. अब क्या था कि नथिंग हस्बैंड्स एक्सप्रेशन फ्रॉम बिहाइंड कर्टन. जमीलाज हिप्ड अ साइग ऑफ रिलीफ. अब जमीला थोड़ी सी रिलैक्स फील करती है अपने हस्बैंड को माइंड को नॉर्मल देख के. शी हैड आस्क्ड हर ब्रदर फॉर अ शेयर इन प्रॉपर्टी ओनली बिकॉज ऑफ हर हस्बैंड. मतलब कि जो आपका जो प्रॉब्लम एक्चुअली वह क्लियर हो गया कि वह प्रॉपर्टी के शेयर मांगने नहीं आई थी. एक्चुअली उसके हस्बैंड ने उसे फोर्स किया था, इसलिए वह आई थी. एक्चुअली वह लेना नहीं चाहती थी. द मुतवली ऑब्जर्व हिज सिस्टर एंड हस्बैंड चेंज बिहेवियर. लेकिन अब ये लोग अपना माइंड चेंज कर लेते हैं. अब ये बोलते हैं नहीं, हमें कोई प्रॉपर्टी शेयर नहीं चाहिए, आप तो इतने अच्छे काम कर रहे हो. निसार के डेड बॉडी को निकाल करके उसे जो मुस्लिम सिमेट्री में आप ला रहे हो, आप तो बहुत अच्छा काम कर रहे हो, तो हम कोई शेयर वेयर नहीं लेंगे. अब यहाँ पर क्या होता है, स्टिल सॉइल इज द सेम एवरीवेयर इजंट इट. व्हाट इज द डिफरेंस इन द सॉइल. मतलब कि हर जगह मतलब मिट्टी तो वही है. उनके कहने का मतलब चाहे कब्रिस्तान हो या हिंदू सिमेट्री हो, राइट. अब नेक्स्ट क्या है कि अलॉट ऑफ मनी वाज कलेक्टेड टुवर्ड हिज नोबल डीड. बहुत सारा पैसा इकट्ठा कर किया गया कि निसार के बॉडी को फाइनली मतलब मुस्लिम सिमेट्री में दफन करना है. पैसा सभी लोगों ने दिया और फ्यूनरल प्रोसेशन भी किया गया, राइट. यहाँ पे अब क्या है कि द फर्स्ट टू रिकवर वाज मुतवल्ली. ही लुक्ड एट द पुलिसमैन. अब इसी बीच ये लोग क्या करते हैं, जमात जब होती है तो वहां पर एक पुलिसमैन भी आ जाता है और इसमें शामिल हो जाता है. आई मीन वेयर अकम्पनी टू द प्रोसेशन टू इंश्योर दैट दे वेर नॉट अनटुवर्ड इंसिडेंट्स. मतलब वो देखता है कैसे कुछ तो हो नहीं रहा है, पुलिस इसलिए आता है. द जमात फॉलोड. जमात हुआ. मुतवल्ली साहब से लेग्स बिगेन टू शेक. मतलब उसे कांपने लगे. समवन केम एंड चेंज प्लेसेस विथ हिम एट द हेड ऑफ द कॉफन. अब यहाँ पर क्या है कि ही ग्लेयर्ड एट दाऊद. A lot of people were communicating. The police stood outside the car was duly buried in the Muslim Kabristan. अब एक्चुअली जो था ये he had no doubt that the drunkard was a painter. अब इसी बीच जब ये लोग जमात कर रहे होते हैं, इसी बीच में एक पेंटर आ जाता है जो कि ड्रंकार्ड होता है. अब ये ड्रंकार्ड कौन होता है, यही ड्रंकार्ड अब निसार रहता है. एक्चुअली ये लोग जिसको आई मीन जो दफन जिसको जमात दे रहे होते हैं वह एक्चुअली निसार नहीं होता है, वो किसी और का डेड बॉडी होता है. लेकिन किसी और के निसार के डेड बॉडी समझ करके किसी और के डेड बॉडी को वो लोग निकाल करके, और यहाँ पर थोड़ा सा कॉमिक जैसा आपको लग रहा होगा, तो उसके डेड बॉडी को ये लोग जमात दे रहे हैं. जबकि निसार अब जिंदा था और यहाँ पर अब ड्रंकार्ड के रूप में अब आ गया. अब सब लोग काफी यहाँ पर शॉक्ड है देख करके कि निसार तो जिंदा है और किसके डेड बॉडी को अब ये लोग जमात दे रहे हैं, राइट. किसके डेड बॉडी को अब इन्हें दफनाना है. तब लास्ट में क्या है, लास्ट में थोड़ा सा सरप्राइजिंग सिचुएशन है कि अब काफी ये सब होने के बाद वो जो मुतवल्ली साहब है अब घर वापस आ जाते हैं कि निसार तो अब जिंदा है. अब पता ही नहीं चला किसके डेड बॉडी को उसने अब दफन करके आ गए. वो घर पर आए, उसने एक गिलास पानी मांगा और देखा कि उसकी जो बेटी है अपनी वाइफ को बुलाया, वाइफ नहीं आ पाई. बेटी आई, पूछी माँ कहाँ है, तो शी सेड कि शी इज नॉट एट होम. वेयर डिड शी गो. पूछा मुतवल्ली की कहाँ गई, तो उसकी बेटी ने बताया कि एक्चुअली अंसार इज वेरी सिक इजंट इट. तो इस वजह से वो घर पर नहीं है, वो हॉस्पिटल में गई है मम्मी. तो उसके बाद वह फिर पूछता है कि क्या हुआ उसे, तो बताती है अंसार हैड हाई फीवर फॉर लास्ट 15-20 डेज. 15-20 दिनों से वह उसको काफी फीवर था और वह एडमिट था. सम इलनेस ऑफ ब्रेन का कुछ बीमारी हो गया था उसे, कॉल्ड मेनिंजाइटिस हो गया था. तो शी स्टार्टेड सॉबिंग. यह बोलती हुई उसकी बेटी रो पड़ी. और जो ग्लास ऑफ वाटर था यह सुन करके उसके हाथों से मुतवल्ली साहब पानी पिए भी नहीं और ग्लास के वाटर गिर गया. स्लोली वॉइसेस बिगन टू साउंड इन हिज ईयर्स अगेन. अम्मा अन्ना माई शेयर इन द प्रॉपर्टी. मतलब उसके कानों में ये सब आवाज गूंजने लगा प्रॉपर्टी की.
अन्ना प्लीज हेल्प द पुअर विडो, माई बाप गिव मी अलोन, रोन फॉर माई डॉटर्स वेडी, हकदार तरस तो अंगा के नूह बरसे, अ रेन ऑफ फायर, क्रू ब्लैक ग्रे, द रेनबो विद इन देम। तो वह इस तरह से मतलब यह उस तरह से फिर उसके मतलब उसके पीछे में उसके मतलब बेटे की डेथ हो जाती है अंसार की, जो कि हॉस्पिटल में एडमिट होता है और उसे अब पता चलता है तो ही वाज काफी डेवास्टेटेड एट द सिचुएशन एंड द स्टोरी एंड्स हियर।